Hello everyone. So today I'm going to take up a new topic of ISC class 12th syllabus, that is Indigo by Satyajit Ray. But before that, I would like to request all my students, do not forget to like, share or subscribe to this channel. So Indigo by Satyajit Ray is a short story about indigo plantation. इंडिया में बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडिगो प्लांटेशन होता था. So this story is about an indigo plantation owner in colonial India who mistreats his worker. So the plot unfolds when the ghost of an oppressed worker seeks justice. So, through a series of mysterious and supernatural events, the story highlights the theme of exploitation, justice, impact of colonial rule, and one important point is the unsettled past. So, let's begin with the story. So, I'll take up page number 164, last para first. The short story Indigo is a first person account of an haunting experience. That means the narrator Anirudh, he himself is describing the events. वो खुद ही सब कुछ बता रहा है. He is the narrator. When the main character Anirudh spends an unplanned night in an old bungalow. So the main character, that is Anirudh, he spends one night in an old bungalow, जिसको ये डाक घर भी बोलते हैं. He experiences an almost paranormal phenomena, कुछ भूतिया, कुछ haunting experience वो करता है. Indigo is replete with instances of Satyajit Ray's masterful use of horror and suspense. Throughout में हमें horror, suspense कुछ ना कुछ हमेशा throughout the story हम लोग को visible हो रहा है, which has the ability to capture the attention of the reader right till the end of the story. So हम लोग last तक बहुत ज़्यादा motivated रहते हैं to read the story further. So let's begin with the story Indigo by Satyajit Ray. My name is Anirudh Bose. So the narrator of the story, the main protagonist of the story is Anirudh Bose. He is a nature lover. I am 29 years old and a bachelor. So he is not married. Bachelor वो males होते हैं जिनकी शादी नहीं होती है. So he is 29 years old and he is still not married. For the last 8 years, I have been working in an advertising agency in Calcutta. So, दो तीन points हम लोग को ध्यान में रखने हैं. He's 29 years of age, he's a bachelor, and he's working for an advertising agency in Calcutta. With the salary I get, I live in reasonable comfort in a flat in Sardar Shankar Road. So again, this is the point which you people need to remember. वो कहाँ पे रहता है? सरदार शंकर रोड पे. The flat has two south facing rooms and is on the ground floor. So इनका जो flat है वो कैसा है? South facing rooms हैं, दो उसमें rooms हैं और it is located on the ground floor. 2 years ago, I bought an ambassador car which I drive myself. So 2 साल पहले मतलब he was well off. अच्छा खासा कमा रहा था, अच्छा खासे फ्लैट में रह रहा था. प्लस जो एम्बेसडर कार इसने ली थी 2 साल पहले वो भी ये ड्राइव करता था. मतलब ही वॉज वेल टू डू, काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहा था. I do a bit of writing in my spare time. So ये कुछ लिखते भी थे when he had free time. He used to write stories and all. 3 of my stories have been published in magazines and have been well appreciated by my acquaintances. Acquaintances का मतलब होता है जान पहचान के लोग. People who know me. So people who used to know him, they used to appreciate his stories. जो भी magazines में stories लिखता था, अपनी जान पहचान लोगों को सुनाता था, तो they used to appreciate it. But I know I cannot make a living by writing alone. So writing से अकेला पैसे नहीं बन सकते हैं, इतना पैसा नहीं है राइटिंग में. सो देयरफॉर ही यूज्ड टू वर्क फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी ऑल्सो, और फ्री टाइम में ये राइटिंग्स एंड ऑल का काम करता था. फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स आई हैवंट बीन राइटिंग एट ऑल. पिछले कुछ महीनों से मैं बिल्कुल भी लिख नहीं रहा था. Instead, I have read a lot about indigo plantation in Bengal and Bihar in the 19th century.
सो व्हेन इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, हम लोग को फोर्स किया जाता था, इंडियंस को फोर्स किया जाता था, इंडियन फार्मर्स को, कि वो इंडिगो अपने यहाँ उगाएं. सो ही वॉज रीडिंग अ लॉट अबाउट इंडिगो प्लांटेशन एंड ऑल. सो बंगाल में, बिहार में कैसे 19th सेंचुरी में जो इंडियंस थे, दे वर फर्स्ट टू ग्रो इंडिगो. आई एम समथिंग ऑफ एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट नाउ. मतलब मैंने इतना ज़्यादा उसको रीड किया है कि मुझे अब उस पर हर चीज़ पता हो गई है. मुझे हर चीज़ बिल्कुल स्ट्रॉन्ग वे में मुझे सब कुछ पता हो गया है. हाउ द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड द पुअर पेजेंट्स. पेजेंट्स मीन्स फार्मर्स. सो किस तरह से ब्रिटिशर्स ने पुअर पेजेंट्स को एक्सप्लॉयट किया. हाउ द पेजेंट्स रोज इन रिवोल्ट. रिवोल्ट ऑफ 1857 में, इसी की वजह से पेजेंट्स ने रिवोल्ट किया था 1857 में. And how finally, with the invention of synthetic indigo in Germany, the cultivation of indigo was wiped out from our country. See, पहले क्या था, दे वर फर्स्ट. इंडिगो क्या होता है, कलर होता है, नील टाइप्स होता है, जो कि उगवाया जाता था इंडियन से. लेकिन जब सिंथेटिक इंडिगो बनने लगा जर्मनी में आर्टिफिशियली केमिकल्स एंड ऑल के थ्रू, तो यहाँ पे इंडिगो का प्रोडक्शन बंद करा दिया गया. द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो वॉज वाइप्ड आउट फ्रॉम आवर कंट्री. फाइनली इट वॉज जस्ट stopped from our country. पूरा cultivation stop कर दिया गया था. All this I know by heart. I've read so much about it. इतना मैं पढ़ चुका हूँ कि मुझे ऐसा लगता है मैंने by heart सब याद कर रखा है. It is so to describe that terrible experience which instilled in me this interest in indigo that I have taken up my pen today. इतना ज़्यादा मैंने इंडिगो के बारे में पढ़ लिया है, इतना इंटरेस्टेड हो गया हूँ कि दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम राइटिंग समथिंग टुडे. At this point, I must tell you something about my past. At this moment, मैं आपको कुछ अपने past के बारे में बताना चाहता हूँ. My father was a well-known physician in Mongar, a town in Bihar. So वो बताते हैं कि मेरे जो father थे, he was a doctor, and वो एक छोटे से town of Bihar में रहते थे. This is where I was born, and that is where I did my schooling in a missionary school. Missionary school जो church जहाँ पे होते हैं. सो मैंने यहाँ पे पढ़ाई भी की थी और मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहाँ पे पूरी कंप्लीट की है. मैं बॉर्न भी यहाँ पे हुआ था, मैंने अपनी स्कूलिंग भी यहाँ पे की है. आई हैव अ ब्रदर 5 years older than me. मैं छोटा भाई हूँ, मुझसे एक बड़ा भाई है, 5 साल बड़ा है. He studied medicine in England and is now attached to a hospital in a suburb of London called Golden Greens. So his elder brother, he's working as a doctor. उसने मेडिसिन की पढ़ाई की थी इंग्लैंड में, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग इन लंडन. उसका जगह का नाम है गोल्डन ग्रीन्स. ही हैज़ नो प्लान्स टू रिटर्न टू इंडिया. और उसका कोई प्लान नहीं है कि वो इंडिया में वापस आए. माई फादर डाइड व्हेन आई वॉज 16. सो वो बता रहे हैं कि मैं बहुत यंग एज में था, 16 ईयर्स में था जब मेरे फादर की डेथ हो गई थी. Soon after his death, my mother and I left Munger and came to Calcutta, where we stayed with my maternal uncle. Maternal uncle means mama. तो soon after the death of his father, इन्होंने मोंगर छोड़ दिया था. ये कोलकाता आ गए थे, कैलकाटा आ गए थे, जहाँ पे ये अपने मैटरनल अंकल के साथ रहते थे. आई वेंट टू सेंट जेवियर्स कॉलेज एंड टुक माई बैचलर्स डिग्री. सो इन्होंने अपनी सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपनी ग्रेजुएशन किया. Soon after that, I got my job with the advertising agency. And after completing his graduation, very soon इनको वहाँ पे job मिल गई एक advertising agency में. My uncle's influence helped me. भाई जॉब आजकल बड़ा मुश्किल होता है मिलना, लेकिन हाँ मेरे अंकल की जो इन्फ्लुएंस था, उनका कुछ सोर्स था जिसकी वजह से मुझे जॉब बहुत ईजिली मिल गई. बट आई वॉजेंट एन अनवर्दी कैंडिडेट माई सेल्फ. ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस था, दैट वॉज गुड, लेकिन मैं भी डिजर्विंग था. ऐसा नहीं था कि मैं अनवर्दी था और बस उनके कहने पे मुझे जॉब मिल गई. मैं खुद भी डिजर्विंग था. I had been a good student and I spoke English fluently, and most of all, I had the ability to carry myself well in an interview. So I was always presentable. मैं हमेशा प्रेजेंटेबल था, मैं इंग्लिश अच्छी बोलता था, मैं एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और मैं अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता था. मेरे अंदर ये क्वालिटी थी. In my early years in Munger had still certain habits in me which I have not been able to give up. See, मोंगर में मेरी कुछ हैबिट्स आ गई थी और वो अर्ली ईयर्स की जो हैबिट्स होती हैं ना, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है. तो मेरे अंदर भी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो मैंने मोंगर में डेवलप कर ली थी, लेकिन वो मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूँ. One of these was an overpowering desire to go far away from the hectic life of Calcutta from time to time. See, I have been to Calcutta. Everyone will agree कि Calcutta is a very, very
क्राउडेड प्लेस, बहुत क्राउडेड है हर समय एंड वेरी बिजी, हर समय चलता ही रहता है, चलता रहता है, राइट। सो यहाँ पे भी वही वो कह रहा है कि मेरा हमेशा से एक डिज़ायर रहता था कि मैं किसी शांत जगह पे जाऊँ, मैं बिल्कुल शांत जगह पे रहूँ, हेक्टिक लाइफ ऑफ कैलकाटा से दूर रहूँ। I had done so several times ever since I bought my car, एम्बेसडर कार। सो जब से मैंने एम्बेसडर कार 2 साल से ख़रीदी है, तब से मैं अक्सर ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा शांति के खोज में रहता हूँ, मैं जहाँ मुझे शांति मिलती है मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। I had done so several times since I have bought my car. On weekends, I made trips to Diamond Harbour, Port Canning, Hassanabad, along the Dum Road. I remember Dum Road. So, दमदम एयरपोर्ट भी था वहाँ पे। सो दमदम रोड के अलोंग जो हसनाबाद है, डायमंड हार्बर है, पुट कैनिंग है, मैं अक्सर यहाँ पे ड्राइव पे निकल जाता था। ईच टाइम आई हैड गॉन अलोन बिकॉज टू बी क्वाइट ऑनेस्ट आई डिड नॉट रियली हैव अ क्लोज फ्रेंड इन कैलकाटा। देखो मैं हर बार अकेले ही जाता था, सच बताऊँ तो मेरा कोई, देखो फ्रेंड्स बहुत होते हैं लेकिन क्लोज फ्रेंड बहुत कम होते हैं, तो मेरा कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था कैलकाटा में। That is why Pramod's letter made me so happy. So this is the reason why मुझे जब मेरे एक पुराने दोस्त प्रमोद का लेटर आता है, मैं बड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, मैं बड़ा हैप्पी हो जाता हूँ कि वाह यार मेरे फ्रेंड ने मुझे लेटर लिखा है। Pramod had been my classmate in Mongar. After I came away to Calcutta, we continued to keep in touch for 3 or 4 years. Then perhaps it was I who stopped writing. So प्रमोद मेरा पुराना दोस्त था, हम लोग साथ में मोंगर में पढ़ते थे। फिर मैं कैलकाटा आया, शुरुआत में तो एक दूसरे से, देखो पहले ज़माने में ना व्हाट्सएप होता था, ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, नथिंग, इट वाज जस्ट थ्रू लेटर्स एंड एवरीवन बिकम्स टू बिजी इन देयर लाइव्स कि कॉन्स्टेंटली लेटर लिखना पॉसिबल नहीं। आप लेटर लिखो, द पोस्ट ऑफिस में जाओ, उसको लाइक डालो, फिर उधर मिले, तो बहुत मुश्किल होता था। तो कुछ टाइम तक तो हम लोग कम्युनिकेशन में रहे, फिर शायद मैंने ही लिखना बंद कर दिया, इसलिए मेरा और प्रमोद का कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया। Suddenly, the other day, when I came back from work, I found a letter from Pramod waiting for me on my desk. फिर एक दिन मैं अपने काम से घर जब आया तो मैंने देखा कि प्रमोद का लेटर मेरे डेस्क पे रखा हुआ है। He had written from Dumka. I have a job in the forest department here. I have my own quarters. Why don't you take a week's leave and come over? So he had invited Anirudh to his house कि भैया देखो मेरी जॉब लग गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में दुमका में, और मेरे को एक क्वार्टर भी मिला है, तुम यहाँ पे आ जाओ, हम लोग एक साथ एक हफ्ता गुजारते हैं, तुम छुट्टी लेके आ जाओ। Some leaves was due to me, हाँ कुछ leaves मेरी बची भी थी। So I spoke to my boss and on the 27th of April, I shall remember the date as long as I live, I packed my bag and set off for Dumka. So 27th of April को कुछ लीव्स थी, मैंने वो ले ली। वो डेट तो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। मैंने अपने बैग्स पैक किए और मैं दुमका के लिए निकल गया। प्रमोद hadn't suggested that I go by car. It was my idea. देखो प्रमोद ने नहीं कहा था कि तुम दुमका जो है वो कार से आओ, मैंने खुद सोचा कि यार कार से जाता हूँ, मेरा आइडिया था। दुमका वॉज 200 माइल्स अवे, ऑलमोस्ट 321 किलोमीटर्स। तो दुमका जो था वो बहुत पास भी नहीं था लेकिन बहुत दूर भी नहीं था, हाँ ट्रैवल किया जा सकता था कार से। सो इट वुड टेक अबाउट 5 or 6 आवर्स एट द मोस्ट, मैक्सिमम 5-6 घंटे का जर्नी था। आई डिसाइडेड टू हैव अ बिग ब्रेकफास्ट, सेट ऑफ बाय 10 एंड रीच देयर बिफोर डस्क। डस्क किसको कहते हैं? शाम को और रात के मिलने के समय को बोलते हैं। तो इसने सोचा सुबह निकलूँगा, ब्रेकफास्ट अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट करके निकलूँगा और वहाँ तक शाम तक तो पहुँच ही जाऊँगा, शाम 7 साढ़े 7 के आसपास। एट लीस्ट दैट वॉज द प्लान, ये मेरा प्लान था। हमेशा प्लान किया हुआ चीज़ एग्जीक्यूट कहाँ हो पाता है। बट देयर वॉज अ स्नैक राइट एट द स्टार्ट, लेकिन स्टार्ट में ही कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या? I had my meal and was about to put a pan into my mouth when my father's old friend Uncle Mohit suddenly turned up. हे भगवान, मैं बस रेडी होके बाहर निकलने वाला था, पान वान चबा के बिल्कुल तैयार होके ब्रेकफास्ट करके मैं निकलने वाला था, मेरे पापा के एक पुराने दोस्त मोहित अंकल चले आए। He is a grave old man whom I was meeting after 10 years. बहुत सीरियस मैन है, पिछले 10 साल से हम नहीं मिल रहे थे, 10 साल बाद मैं उनसे मिला। सो देयर वॉज नो क्वेश्चन ऑफ गिविंग हिम शॉर्ट शिफ्ट, मतलब ट्रीटमेंट विदाउट सिंपैथी या उनसे कॉर्डियली बात ना करें, तमीज़ ना शो करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं भी। तो वो आते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा उनके साथ रिस्पेक्ट के साथ उनको बिठाना पड़ता है, उनके साथ टाइम शेयर करना पड़ता है।
I had to offer him tea and listen to him chat for over an hour. So 1 घंटा लगभग मुझे उनके साथ चाय बैठ के पीना पड़ता है. 1 घंटा ऑलमोस्ट उनके साथ चाय वाय पीता हूँ, उनकी बातें सुनता हूँ. हाँ, I saw Uncle Mohit off and shove my suitcase and bedding into the back seat of the car. So अंकल को बाद सी ऑफ करके आता है, उसके बाद जल्दी से आता है, अपना सूटकेस, अपना बेडिंग, बिस्तर एंड ऑल वो सब बैक सीट ऑफ द कार पे डाल देता है. Just then, my ground floor neighbor Bhola Babu walked up with his 4-year-old son Pintu in tow. Tommy's following closely. पीछे से वो फॉलो करता हुआ चला रहा है पिंटू. Where are you off to all by yourself? भोला बाबू asked. अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो भैया? अकेले अकेले चल दिए. When I told him, he said with some concern, but that's a long way. Shouldn't you have arranged for a driver? तो बड़ा कंसर्न करके कहते हैं भैया अकेले इतनी दूर जा रहे हो, तुम्हें तो कोई ड्राइवर रखना चाहिए था. I said I was a cautious driver myself. I am myself a very alert driver. मुझे ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है. And that I had taken such care of my car that it was still as good as new. मैंने इतने ध्यान से अपनी कार को रखी ना, बिल्कुल नई जैसी है, तो कोई चिंता की बात नहीं है. बहुत अच्छा है, सर्विसिंग फिट है बिल्कुल मेरे कार. So there is nothing to worry about. कोई दिक्कत की बात नहीं है, ड्राइवर की क्या ज़रूरत है, मैं खुद ही इतना एक्सपर्ट हूँ. भोला बाबू wished me luck and went into the house. तो भोला बाबू कहते हैं ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट, जाओ. I glanced at my wristwatch before turning the ignition key. मैंने घड़ी देखी before actually turning on the ignition key, मतलब चाबी लगा के गाड़ी ऑन करने से पहले. It was 10 minutes past 11. So 11:10 हो रहा था. Although I avoided Havra and took the Ballet Bridge Road, it took me an hour and a half to reach Chandarnagar. See, मैंने बिजी वाली जो रोड थी, हावड़ा वाली रोड, वो मैंने अवॉइड की. मैंने बैले ब्रिज रोड लिया, उसके बाद भी मुझे 1.5 घंटा ऑलमोस्ट लग गया चंद्रनगर पहुंचने में. ड्राइविंग थ्रू डिंजी टाउन, डार्क एंड डर्टी टाउन्स. हे भगवान, देखो हाईवे पे चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये जो डार्क टाउन्स होते हैं ना, इनमें चलाना, पतली पतली रोडों के बीच में चलाना बड़ा मुश्किल होता है. These first 30 miles were so dreary. Oh my god, first 30 miles were very depressing. मज़ा ही नहीं आ रहा था गाड़ी चलाने में. कोई ना कोई आ रहा है, कोई ना कोई जा रहा है. एंड वैसे भी as you people know, कोलकाता is a very crowded place. बहुत crowded है, बहुत ज़्यादा crowded है, तो वहाँ पे ड्राइव करना बहुत मुश्किल होता है. That the fun of the car journey was quite lost. So initially I was not enjoying my car journey. मुझे car journey बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था शुरुआत में. But from there on, as the car emerged into the open country, the effect was magical. लेकिन जब मैं खुली एरिया में गया तो इफेक्ट वॉज मैजिकल. जब कंट्री साइड में गया, दैट मीन्स थोड़ा सा मेन शहर को छोड़ के जब हम अलग हटने लगे, तो इफेक्ट वॉज मेस्मराइजिंग. बड़ा मज़ेदार इफेक्ट था. Where in the city did one get to see such a clear blue sky free from chimney smoke? Again, बहुत क्राउडेड है, बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड है कोलकाता. तो वही वो बोल रहा है कि जब कंट्री साइड में आओ तो इतना ब्लू स्काई हाई कहीं दिखाई देता है क्या पूरे शहर में? ऐसा इतना क्लियर स्काई तो दिखाई नहीं देता है. फ्री फ्रॉम चिमनी स्मोक, ना कोई पोल्यूशन, ना कोई फैक्ट्री का चिमनी से स्मोक निकल रहा है. हाई इतना सुंदर स्काई. And the breathed air was so pure and so redolent of the smell of earth, suggestive. वाह, मिट्टी की खुशबू आ रही थी. मिट्टी की जो सौंधी सौंधी स्मेल होती है, उसके लिए एक और वर्ड है. जब बारिश होती है तो एक हल्की सी मिट्टी में सौंधी सौंधी स्मेल होती है. आपकी नॉलेज के लिए बता दें, इट इज़ नोन एज पेट्रिकोर. तो वही वो कह रहा है कि यार क्या स्मेल है, वाह मज़ा आ गया ये स्मेल देख के, सुन के. At about 12:30, almost 12:30, I was nearing Burdwan. So 12:30 के आसपास मैं बुर्दवन पहुंच गया था. I began to feel the consequences of having eaten so early. हाय राम, सुबह जल्दी खा लिया, अब तो भूख लगने लगी. इतनी जल्दी मुझे भूख लगने लगी. Hungry, I pulled up by the station which fell on the way. So रास्ते में क्योंकि मुझे भूख लग रही थी, मैंने सोचा स्टेशन एक जगह वहाँ पे कहीं पे स्टॉपेज है जहाँ पे कुछ खाने को मिल जाए, मैं वहाँ पे रोक लेता हूँ. Went into the restaurant and had a light meal of toast, omelette and coffee. So मैंने एक हल्का सा और मील ले लिया जिसमें हल्का सा एक टोस्ट, ऑमलेट और कॉफ़ी लिया. Then I resumed my journey. I still had 135 miles to go. Almost 1/3 of the journey उसने कवर कर ली थी. अभी भी 135 miles बचा था. 20 miles from Burdwan, there was a small town called Panagarh. So 20 miles की डिस्टेंस पे बुर्दवन से एक छोटा सा टाउन था जिसका नाम पनागृह था.
There, I had to leave the Grand Trunk Road and take the road to Ilam Bazar. From Ilam Bazar, the road went via Suri and Messenger to Dumka. So this was the path which he was taking. ये route था जो वो ले रहा था. The military camp at Panagar has just come into view when there was a bang from the rear of my car. जो मिलिट्री कैंप था पानागर का वो हल्का हल्का विजिबल हो रहा था, तभी पीछे से टाइन से कुछ आवाज़ आती है. आई हैड अ फ्लैट टायर. यार टायर पंचर हो गया मेरा. रेयर का मतलब होता है बैक, तो पीछे वाली कार का जो पीछे वाला व्हील है उनमें से कोई एक व्हील पंचर हो जाता है. आई गॉट डाउन. चलो आई हैड अ स्पेयर टायर एंड कुड ईजिली फिट इट. चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास एक स्पेयर टायर था, मैं फिट कर लूँगा. The thought that the other cars would go whizzing by, their occupants laughing at my predicament. Predicament means unpleasant situation. मुझे लग रहा था बताओ मैं यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह बैठ के अब टायर बनाऊंगा, बाकी लोग जुम करते हुए चले जाएंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे. उसका टायर ही पंचर हो गया, सब हंसते हुए चले जाएंगे. सो whizzing by means moving with the sound. जुम करके जो निकल जाते हैं. Was not a pleasant one. उफ, ये अच्छा नहीं लगता, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे. Nevertheless, I brought out the jack from the boot and set to work. So jack एक इंस्ट्रूमेंट होता है, सभी लोग देखे होंगे, जिससे ऐसे ऐसे करते हैं तो वो गाड़ी थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है, इस तरह का. एंड फ्रॉम द बूट जो होता है वो ट्रंक स्पेस होता है जहाँ पे जनरली हम लोग सारा ये जैक एंड ऑल सारे टूल्स रखते हैं. एंड सेट टू वर्क, और मैं अपने काम पे लग जाता हूँ. By the time I finished putting the new tire on, I was dripping with sweat. किसी तरह टायर वायर चेंज किया, पूरा पसीने पसीने में हो गया था. I was just dripping with sweat. My watch showed 2:30. काफ़ी टाइम मुझे लग गया था. 2:30, 2:30 बज चुका था. I had turned muggy in the meantime. Muggy means warm and wet. मैं पूरा गीला, पूरा गर्मी वाली कंडीशन मेरी हो चुकी थी. The cool breeze, which was blowing even an hour ago and was making the bamboo trees sway, had stopped. हे भगवान, थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि बैम्बू ट्रीज पूरा स्वे कर रहे थे, ऐसे ऐसे पूरा मूवमेंट हो रहा था. अब तो वो हवा भी रुक गई थी, कोई हवा भी नहीं चल रही थी. नाउ एवरीथिंग वाज स्टिल. सब बिल्कुल स्टिल था, कुछ नहीं मूवमेंट हो रहा था, कोई हवा नहीं चल रही थी. As I got back into the car, I noticed a blue-black patch in the west above the treetops. अब मैं कार में आया हूँ तो मैंने ऊपर वेस्ट की तरफ देखा, और यार बादल, क्लाउड्स, ओ शिट, ये तो काले बादल आ रहे हैं, मतलब बारिश होने वाली है. क्लाउड्स. Was a storm brewing up, about to happen? क्या storm brew up हो रहा है? क्या storm कोई किसी तरह का तूफान आने वाला है? और नॉर्थ वेस्ट विंड, नॉर्थ वेस्ट की विंड जो चलती है वो वाली है, क्या वो कोई स्टॉर्म लाने वाली है? इट वॉज यूजलेस टू स्पेकुलेट, इट वॉज यूजलेस टू गेस, कोई फ़ायदा नहीं है. आई मस्ट ड्राइव फास्टर. क्या फ़ायदा ये सब बैठ के टाइम वेस्ट करना, चलो यार ड्राइव करता हूँ, स्पीड में निकलता हूँ यहाँ से. आई हेल्प माई सेल्फ टू सम हॉट टी फ्रॉम द फ्लास्क एंड रिज्यूम माई जर्नी. सो फ्लास्क हॉट बॉटल जो होती है उसको बोलते हैं. तो मैंने उसमें से थोड़ी सी चाय ली, अपने आप को रिफ्रेश किया एंड सिंपली मैं निकल चुका जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए. बट बिफोर आई कुड क्रॉस इलम बाज़ार, आई वॉज कॉट इन द स्टॉर्म. मैं इलम बाज़ार क्रॉस कर ही पाता, उससे पहले ही वो तूफान में मैं फंस जाता हूँ. आई हैड एन्जॉयड सच नॉर्थ वेस्टर इन द पास्ट, सिटिंग इन माई रूम, and had even recited Tagore's poem to myself to blend with the mood. देखो यार, पानी में देखना, कमरे में आराम से चाय कॉफ़ी पीते हुए, रीड करते हुए, ये इस तरह के तूफ़ान को देखना बड़ा मज़ा आता है. लेकिन जब आप उस तूफ़ान में फंस जाओ तब बैंड बज जाती है. हे भगवान, आई हैव नो शेल्टर टू टेक प्लेस. मतलब मैं फंस गया हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता है. तो अर्लियर मैंने इस तरह के तूफ़ान विटनेस किए हैं, बट हमेशा अपने कमरे में बैठ के आराम से चाय पीते हुए, ये कहाँ मैं आके फंस गया. I had no idea that driving through open country, such a northwester could strike terror into heart. हे भगवान, ओपन कंट्री में अगर इस तरह का नॉर्थ वेस्टर आ जाए तो आपके दिल में टेरर आ जाता है. मैंने पहले कभी सोचा ही नहीं था. Claps of thunder always made me uncomfortable. वो जो thunderous sounds होती हैं, मैं हमेशा उससे बहुत uncomfortable रहता हूँ. They seem to show a nasty, unpleasant side of nature. ऐसे तो नेचर बड़ा प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन जब थंडर, वो जो बादल का गरजना होता है, वो सब आता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है. भगवान, ये क्या है? A vicious means cruel.
असॉल्ट ऑन हेल्पलेस ह्यूमैनिटी, हम लोग तो हेल्पलेस हैं, नेचर हम पे एक बहुत बड़ा असॉल्ट, एक वॉर टाइप्स कर रहा है, हे भगवान प्लीज़ ये मत करो। It seemed as if the shaft of lightning were all aimed at my poor ambassador. वो जो बिजली कड़क रही है ना, वो ऐसा लग रहा है मेरी एम्बेसडर को टारगेट की हुई है कि आओ अब तुम्हारी बारी है, अभी तुम्हें बताते हैं। तो वो एक ऐसा लग रहा था मुझे as if all those lightning were targeting my ambassador and one of them was sure to find its mark sooner or later। और एक ना एक लाइटनिंग तो पक्का मेरी एम्बेसडर पे आके गिरी जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा था, अभी नहीं तो थोड़ी देर में। मैं इतना ज़्यादा डर गया था। In this precarious state, I passed सूरी। इस अनसेफ स्टेज में मैं कहाँ पे पहुँच गया, मैंने सूरी एक जगह है उसको पास कर लिया। And well, on my way to Mansinjor, when there was yet another bang which no one could mistake for a thunderclap, I realized that another of my tire had decided to call it a day. Now, second mishappening क्या होता है, जैसे ये मंजर जौर पहुंचता है वहाँ पे फिर से एक धम से आवाज़ आती है और पहले तो इसको लगता है कि वो शायद कोई थंडर क्लैप है, लेकिन आई गेव अप होप, मेरी तो सारी उम्मीदें ही ख़त्म हो गई। इट वॉज नाउ पोरिंग विथ रेन, पोरिंग मीन्स हेविली रेनिंग, इट वॉज रेनिंग हेविली, बहुत कस कस के बारिश हो रही थी। माई वॉच सेड 5:30, ऑलरेडी 5 बज चुका था। For the last 20 miles, I had to keep the speedometer down to 15. Imagine, कार में 15 की स्पीड क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है, लेकिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि मैं 15 के ऊपर चला ही नहीं पा रहा था। धीरे धीरे अपना विंड वाला क्लीन करते हुए बस धीरे धीरे 15 की स्पीड पे मैं आगे बढ़ा रहा था। और आई वुड हैव बीन वेल पास मंसिंजोर बाय नाउ। अगर नॉर्मल स्पीड पे चला रहा होता तो अब मंसिंजोर तो मैं बहुत पहले ही लाइक पास कर चुका होता। Where was I? अरे लेकिन मैं हूँ कहाँ पे? Up ahead nothing was visible through the rain swept windscreen. So windscreen पे इतनी तेज से बारिश हो रही है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो इसको समझ में नहीं आता कि ये है कहाँ पे। The Viper was on, but its efforts were more frolicsome than effective. वाइपर चल रहा था लेकिन ऐसा लग रहा है वाइपर खेल रहा है, वो प्लेफुल मूड में है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव, वो इफेक्टिव तो बिल्कुल भी नहीं था, बस ऐसा लग रहा था वो खेल रहा है पानी के साथ, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था वाइपर चलने का, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। It being April, the sun should still be up, but it seemed more like late evening. 5 बजा था, अप्रैल का समय था, तो सन तो होना ही चाहिए, 5 साढ़े 5 तक तो सन ईजिली रहता है, 7 साढ़े 7 तक रहता है, लेकिन लेट इवनिंग 7 साढ़े 7 वाला फीलिंग आ रहा था क्योंकि सब बारिश से बादल बादल सब घिरे हुए थे। आई ओपन द डोर ऑन माई राइट स्लाइटली एंड लुकड आउट। हल्का सा दरवाज़ा खोलता है, बाहर देखता है। What I saw did not suggest the presence of a town. जहाँ मैं देख रहा था उसे लग रहा था कि ये टाउन में तो मैं नहीं हूँ। Though I could make out a couple of buildings through the trees. कुछ buildings तो दिखाई दे रही थी trees के आसपास, कहीं trees के बाद beyond, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली में है क्या। There was no question of getting out of the car and exploring. इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि कार से निकलना फिर देखना मैं कहाँ हूँ क्या हूँ, that was not possible. But one thing was clear enough. There was no shop along the road as far as the eyes could see. पूरी रोड पे कहीं पे भी कोई शॉप नहीं थी, जहाँ तक आके कि निगाह जा सकती है वहाँ तक मैंने देखने की कोशिश की, दूर तक मुझे कहीं पर भी कोई शॉप नहीं दिखाई दी। आई हैड नो मोर स्पेयर टायर्स। अरे यार स्पेयर टायर तो एक ही रखता है भगवान, अब तो मेरे पास स्पेयर टायर भी नहीं था। आफ्टर वेटिंग इन द कार फॉर क्वार्टर ऑफ एन आवर फॉर ऑलमोस्ट 15 minutes, it struck me that no other vehicle had passed by in all this time. 15 मिनट से एक भी व्हीकल नहीं पास हुआ उस रास्ते। Was I on the right road? क्या मैं सही रोड पे हूँ? अरे यार मेन रोड है, लोग तो जाते ही हैं, ऐसा थोड़ी ना एक भी गाड़ी नहीं गई 15 मिनट में। There had been no mistake up to सूरी, but suppose I had taken a wrong turn after that. लग रहा है सूरी से मैंने गलत टर्न ले लिया है। सूरी तक तो कोई मिस्टेक नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा है सूरी से मैंने गलत टर्न ले लिया था। इट वॉज नॉट इम्पॉसिबल इन द ब्लाइंडिंग रेन। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, ऑलमोस्ट ब्लाइंडिंग रेन था, कि उसमें ये इम्पॉसिबल तो नहीं था, गलत टर्न तो हो सकता था। बट इवन इफ आई हैड मेड अ मिस्टेक, इट वॉज नॉट एज इफ आई हैड स्ट्रेड इन टू द जंगल्स ऑफ अफ्रीका और अमेरिका। ओके फाइन, अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो कोई मैं अफ्रीका या अमेरिका थोड़ी ना चला गया हूँ। अरे आगे जाएंगे मोड़ मोड़ लेंगे, कहीं सही रास्ता पकड़ लेंगे। Wherever I was, there was no doubt that I was still in the district of Birbhum, within 50 miles of Shantiniketan, and
As soon as the rain stopped, my troubles would be over. I might even find a repair shop within a mile or so. तो यार ये बात तो श्योर है कि मैं आस ही पास की विसिनिटी में हूँ. मैं या तो शांति निकेतन 50 माइल्स जो है विद इन 50 माइल्स ऑफ शांति निकेतन में ही हूँ. बारिश का बस रुकने का है, उसके बाद मुझे रिपेयर शॉप भी मिल जाएगी और मैं ईजिली अपने रास्ते चल दूंगा. I pulled out a packet of Wills from my pocket and lit a cigarette. So Wills is the name of the brand. So मैंने Wills का सिगरेट का पैकेट निकाला और उसको लाइट किया. आई रिकॉल्ड भोला बाबूज वार्निंग. भोला बाबू ने क्या बोला था? टिकट ड्राइवर. मुझे याद आता है यार, बंदा सही बोल रहा था, पक्का उसके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा तभी उसने ऐसा मुझे एडवाइस किया. ही मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम ट्राइंग एक्सपीरियंस और हाउ कुड ही हैव गिवन मी सच अ साउंड एडवाइस. साउंड मतलब गुड एडवाइस. पक्का उनके साथ कुछ इस तरह का इंसिडेंट हुआ होगा तभी उन्होंने मुझे इतनी अच्छी एडवाइस दी है. हॉन्क हॉन्क हॉन्क, पीछे से हॉन्क, कोई हॉर्न पे हॉर्न देता है. I turned round and saw a truck standing behind. मैंने देखा तो एक ट्रक मेरे पीछे खड़ा था. Why was it blowing its horn? क्यों हमारा ये हॉर्न पे हॉर्न बजा रहा है? Was I standing in the middle of the road? मैं रोड के बीच बीच में खड़ा हूँ क्या जो बार बार हॉर्न बजा रहा है? The rain had let up a little. Rain जो था वो थोड़ा सा reduce हो गया था. I opened the door, got out and found that it was no fault of the truck. ट्रक वाले की गलती नहीं थी. When my tire burst, the car had swerved at an angle and was now blocking most of the road. जब मेरी कार ऐसे जा रही थी, फ्लैट हुआ तो मेरी कार ऐसे हो गई, थोड़ा सा ऐसे, और एज अ रिजल्ट जो बाकी ऑफ द रोड थी, बाकी रोड भी ब्लॉक हो रही थी, तो ट्रक इजिली जा नहीं सकता था. And there was no room for the truck to pass, or there was no space for the truck to pass. जगह ही नहीं थी, ट्रक वहाँ से पास कैसे होता. Take the car to one side, sir. Sir, साइड में लगा लो ना, एक तरफ कर लो. The sick driver had by now come out of the truck. वो ट्रक से ड्राइवर उतर आया था. What is the matter? He asked. A puncture? क्या हो गया भाई साहब, पंचर हो गई है. I shrugged to convey my state of helplessness. Yes, तो shrugging means जो अपने shoulders को हम लोग raise करते हैं, raising your shoulder. Yes. If you could lend a hand, I said, we could move the car to one side and let you pass. थोड़ी सी मदद कर दो भाई, मैं अपनी कार को खिसका लेता हूँ. The sick driver's helper came out too. जो उसका हेल्पर होता है, ट्रक में जनरली एक हेल्पर रहता है, वो भी निकल के आता है. The three of us pushed the car to one side of the road. हम लोग ने धक्का देके साइड ऑफ द रोड किया. Then I found out from the two men that I was indeed on the wrong road for Dumka. फिर मुझे पता चलता है उन दोनों ने बताया कि मैं गलत रास्ते पे ही हूँ, डुमका का ये रास्ता ही नहीं था. I had taken a wrong turning and would have to drive back 3 miles to get back on the right track. मैंने गलत मोड़ ले लिया था, रॉन्ग टर्निंग ले लिया था, और मुझे करीबन 3 माइल्स वापस से चलना पड़ेगा, वापस से अपनी गाड़ी को लेके जाना पड़ेगा ताकि मैं राइट ट्रैक, राइट रोड को पकड़ सकूं. आई ऑल्सो लर्न दैट देयर वर नो रिपेयर शॉप्स नियर बाय. ओफो, आस पास तो कोई रिपेयर शॉप भी नहीं है. द ट्रक वेंट ऑन इट्स वे. ट्रक अपने रास्ते चली जाती है. As its noise faded away, the truth struck me like a hammer blow. अब जब वो चली जाती है ट्रक, तब मुझे एकदम से ट्रूथ रियलाइज होता है. ओ शिट, बंदा तो सही बोल के गया है. आई हैड रीच्ड अ डेड एंड. हे भगवान, मैं तो डेड एंड की तरफ आ चुका हूँ जहाँ पे कुछ आगे कुछ है ही नहीं. देयर वॉज नो वे आई कुड रीच डुमका दैट नाइट. अब तो लग ही नहीं रहा है कि मैं डुमका पहुँच ही पाऊँगा आज रात में. एंड हैड नो आइडिया हाउ एंड वेयर आई वुड स्पेंड द नाइट. हे भगवान, रात कहाँ गुजारूंगा. The roadside puddles were alive with the chorus of frogs. So personification है, देखो जो रोड साइड की जो puddles हैं, जो पानी भर गए हैं, वहाँ पे खूब सारे frogs आ गए हैं, सब टर्र टर्र कर रहे हैं. आप लोग ने देखा होगा जनरली बारिश के समय जितने भी frogs and all होते हैं वो आ जाते हैं. So it seemed as if the roadside puddles were all alive. Why? Because the sound of the frogs were coming from them. The rain had now been reduced to a light drizzle. हल्की हल्की बारिश बिल्कुल हो रही थी. I got back into the car and was about to light a second cigarette when I spotted a light through the window on my side. मैं जाके सेकंड स्मोक करने जा रहा था, सेकंड सिगरेट को जलाने जा रहा था, तभी मैंने विंडो पे कहीं से लाइट आते हुए दिखाई दी. I opened the door again. मैंने फिर से दरवाज़ा खोला. Through the branches of a tree, I saw a rectangle of orange light. एक हल्का सा rectangle type orange light मुझे कुछ visible हुआ. A window? ये तो अरे किसी की खिड़की लग रही है. Just a smoke meant the presence of fire. ऊपर से हल्की स्मोक आ रही है, मतलब यहाँ पे कोई रहता है, आग जल रही है यहाँ पे. A kerosene lamp meant the presence of a human being. Wow, kerosene lamp जल रहा है, मतलब कोई ह्यूमन होगा, उसी ने तो ये kerosene lamp जलाया होगा, मतलब कोई ह्यूमन भी यहाँ पे है.
सो देयर वॉज अ हाउस नियर बाय एंड देयर वर ऑक्यूपेंट्स इन इट. सो ये जब उसको लाइट दिखाई देती है, उसमें से स्मोक दिखाई देता है, तो उसका दिमाग चलता है कोई तो यहाँ पे रहता ही है. ऑक्यूपेंट्स भी रहते हैं, मतलब लोग यहाँ पे रहते हैं. आई गॉट आउट ऑफ द कार विथ माई टॉर्च. सो मैं अपना टॉर्च लेके गाड़ी से उतरा. द विंडो वॉज इन टू फार अवे. जहाँ से लाइट आ रही थी वो विंडो बहुत दूर नहीं थी, पास ही में थी. आई हैड टू गो एंड इन्वेस्टिगेट. आई वॉन्टेड टू फाइंड आउट. अब मुझे जाके पता करना पड़ेगा ये क्या है. There was a narrow footpath branching off from the main road which seemed to go in the direction of the house with the window. So एक फुटपाथ था जो मेन रोड से ब्रांच होते हुए जा रहा था, उसी तरफ जा रहा था जहाँ पे वो विंडो थी और वहाँ जहाँ से वो स्मोक आ रहा था. I locked the car and set off. मैंने कार अनलॉक की और चला गया. I made my way avoiding puddles as far as possible. So जो छोटे छोटे पानी के गड्ढे हो गए थे because of the rain, मैं उनको अवॉइड करते हुए बड़ा मुश्किल से मैं गया. एज आई पास टैमरिड ट्री. टैमरिड का मतलब होता है इमली. तो जब मैंने टैमरिड ट्री पास किया, इमली का पेड़ पास किया, द हाउस केम इन टू व्यू. फाइनली मुझे वो घर दिखाई देता है. वेल, हार्डली अ हाउस. वो कहने के लिए घर था, वो तो घर भी नहीं था. इट वॉज अ स्मॉल कॉटेज विद अ कॉरुगेटेड टिन रूफ. मोल्डेड टिन रूफ. टिन रूफ को मोल्ड करके मतलब टीन के छप्पर पड़ा हुआ था. वो झोपड़ी टाइप्स था जिसमें टीन का छप्पर पड़ा हुआ था. Through an open door, I could see a hurricane lantern and the leg of a bed. So जो open door था, मुझे वहाँ पे एक लालटेन टाइप दिखाई दे रहा था और leg of a bed, एक बिस्तर का, चारपाई टाइप जो बिस्तर होते हैं उसका पैर दिखाई दे रहा था. ये चिल्लाता है, Hello, is anybody there? I called out. कोई है, कोई है. A stocky, middle-aged man with a thick mustache came out from the room and squinted at my torch. Squinted का मतलब ऐसे, टॉर्च है ना तो ऐसे करके देखता है आंखें क्लोज करके कि कौन आया है. I turned the spot away from his face. तो मैंने एकदम से इधर घुमा लिया ताकि वो ऐसे ना करे, आंखों पे लग रही है उसके. तो एक मिडिल एज मैन आता है, खूब मोटी मोटी मूछें होती हैं, वो आता है. Where are you from, sir? The man asked. वो बंदा पूछता, कहाँ से भैया. In a few words, I describe my predicament. अपनी unpleasant situation को कुछ ही शब्दों में मैं describe करता हूँ. Is there a place here where I can spend the night? वो बताता होगा कि भाई मैं यहाँ से आया था, दुमका जा रहा था, टायर फ्लैट हो गया एंड ऑल दैट. फिर वो पूछता है क्या कोई जगह है जहाँ पे मैं अपनी रात गुजार सकता हूँ. आई शैल पे फॉर इट. ऑफ कोर्स मैं फ्री में नहीं मांग रहा हूँ. देखो कोई भी चीज़, नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड. हर चीज़ का आपको पैसा देना पड़ता है. तो वही वो कह रहा है कि नहीं नहीं देखो मैं पैसे दूंगा, ऑफ कोर्स सी बात है, मैं आपको आई विल पे यू फॉर दैट. इन द डार्क बंगलो यू मीन. सो डार्क बंगलो पोस्टल सिस्टम में अर्लियर टाइम्स में यूज होता था. डार्क मीन्स मेल. सो अर्लियर टाइम्स में ये एक्चुअली में एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है एंड ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की स्टे करने के लिए पहले यूज होता था. तो वही वो पूछ रहा है इन द डार्क बंगलो यू मीन, मतलब वो जो डार्क बंगलो है वहाँ पे. डार्क बंगलो. आई डिड नॉट सी एनी डार्क बंगलो. कैसा डार्क बंगलो, मैंने तो कोई डार्क बंगलो नहीं देखा. बट इमीडिएटली आई रियलाइज माई मिस्टेक. जैसे ही वो डार्क बंगलो बोलता है तो मुझे एकदम से कुछ रियलाइजेशन होता है. आई हैड फॉलोड द लाइट ऑफ द लालटेन एंड हैड देयरफॉर फेल्ड टू लुक अराउंड. नाउ आई टर्न माई टॉर्च टू माई लेफ्ट एंड इमीडिएटली अ लार्ज बंगलो केम इनटू व्यू. एक्चुअली मैं इसने जो लाइट देखी थी कार से, तो ये उसी को फॉलो करते हुए चला आया. उसने लेफ्ट हैंड साइड में तो देखा ही नहीं, वहाँ पे तो सच में एक बड़ा सा बंगलो था. सो यू मीन दैट वन. ये अपनी टॉर्च उधर करके कहता है मतलब वो वाला आप बंगलो कह रहे हो. येस सर बट देर इज नो बेडिंग. येस सर लेकिन गद्दा वद्दा नहीं है वहाँ पे. बेडिंग का मतलब एक गद्दा, तकिया, पिलो, देर इज नो सच थिंग. एंड यू कांट हैव मील्स देयर. और आप खाना भी नहीं वहाँ पे कुछ है. आई एम कैरिंग माई ओन बेडिंग. ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बेडिंग तो मेरे पास है, मैं अपना बेडिंग लाया हूँ. आई सेड आई होप देयर इज अ बेड देयर. बिस्तर तो है ना, मैं बाकी बेडिंग है मेरे पास. येस सर अ चारपॉय. चारपॉय जो हम लोग के घरों में होती है जनरली वो. And I see there is a stove lit in your room. You must be cooking your own meals. So very clever, like he has a very good presence of mind. आपके घर में देखो स्टोव रखा है, मतलब आप भी कुछ खाना तो अपने लिए बना रहे होगे ना. The man broke into a smile and asked if I would care for coarse chapati prepared by him and urad ka dal cooked by his wife. So coarse means rough. तो हंस के कहता है अच्छा ठीक है, आप रफ चपातीज हैं और उड़द की दाल है. चपाती मैंने बनाई है, रोटी मैंने बनाई है और उड़द की दाल जो है वो मेरी वाइफ ने बनाई है. अगर आपको खाना हो तो बताइए. आई सेड इट वुड डू वेरी नाइसली. हाँ हाँ बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा है. आई लाइक्ड ऑल काइंड्स ऑफ चपाती एंड उड़द दाल वॉज माई फेवरेट दाल. हाँ हाँ हर तरह की चपाती मुझे पसंद है. भैया देखो वही है ना कि जब आप इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गए हो तो सब कुछ अग्री करना पड़ेगा. ही हैड नो ऑप्शन.
आई डोंट नो वॉट द बंगलो मस्ट हैव बीन लाइक इन इट्स हेडे, हेडे मतलब पीक टाइम में, जब उसका सही समय रहा होगा। मुझे नहीं पता उस समय ये बंगलो जो है वो किस तरह का रहा होगा, बट नाउ इट वॉज हार्डली वॉट वन अंडरस्टूड बाई डाक बंगलो। लेकिन इस समय तो बिल्कुल भी डाक बंगलो जैसा तो कहीं पे भी नहीं था। कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द राज, द बेडरूम were large and the ceilings were high। अच्छा, कभी आप लोग ने जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो हाई पोस्ट पे रहते हैं उनके घर देखो, जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए थे, खूब बड़े बड़े उनकी सीलिंग्स होती हैं। रेलवेज के अगर आप देखो तो खूब बड़े बड़े इन लोग के बंगलोज होते हैं, तो इनकी सीलिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी, रूम्स बहुत बड़े बड़े थे। द फर्नीचर कंसिस्टेड ऑफ अ चारपॉय, a table set against the wall on one side and a chair with a broken arm। So पुराना फर्नीचर था, चारपाई है, एक टेबल है जिसमें वॉल की एक साइड पे लगी हुई है, और चेयर्स हैं जिनमें एक ब्रोकन आर्म्स है, मतलब उसकी हाथ नहीं है उसका। द चौकीदार और द केयर टेकर हैड इन द मीन टाइम लिट अ लालटेन फॉर मी। उतनी देर में वो जो चौकीदार था या जो केयर टेकर था उसने मेरे लिए एक लालटेन को जला दिया, जल्दी से मेरे लिए भी एक लालटेन जला दिया। ही नाउ पुट इट ऑन द टेबल, वो लाता है लालटेन और टेबल पर रख देता है। सो मैंने उनसे पूछ लिया, व्हाट इज योर नेम? सुखन राम सर। तो मेरा नाम सुखन राम है, वो बताता है। हैज़ एनीबडी एवर लिव्ड इन दिस बंगलो और एम आई द फर्स्ट वन? से यार किसी की भी बैंड बज जाएगी ना, इतना बड़े बंगलो में अकेले रहना, तो इसको डर लग रहा है। क्या कह रहा है, यहाँ पे पहले भी कोई रह चुका है या मैं ही पहला हूँ? ओ नो सर, अदर्स हैव कम टू। हाँ हाँ सर, अक्सर आते रहते हैं। देयर वाज अ जेंटलमैन हु स्टेड हियर फॉर 2 नाइट्स लास्ट विंटर। अरे नहीं सर, अभी पिछले विंटर्स में यहाँ पे एक पर्सन आए थे जो 2-2 रात रुके थे यहाँ पे। आई होप देर आर नो घोस्ट हियर, आई सेड इन अ जॉकुलर टोन। जॉकुलर मतलब ह्यूमरस टोन, मजाक वे में मैंने बोला। घोस्ट वोस्ट तो नहीं है ना, उम्मीद करता हूँ। गॉड फॉरबिड, नो वन हैज़ एवर कंप्लेन्ड ऑफ घोस्ट। नहीं नहीं सर, कभी किसी ने घोस्टर्स के बारे में कंप्लेन तो नहीं किया है। आई मस्ट से आई फाउंड हिज वर्ड्स रियश्योरिंग। सच बताऊँ तो मेरे दिल को बड़ी ही सुकून मिला। नहीं नहीं, भूत नहीं है। अगर नहीं हो तो कोई बोल दे हाँ भूत है, तो ऐसे ही पूरी रात बैंड बज जाएगी, कोई सो नहीं सकता है। इफ अ प्लेस इज स्पूकी, स्पूकी मतलब फ्राइटनिंग, एंड ओल्ड डार्क बंगलोज हैव अ रेपुटेशन फॉर बीइंग सो, इट विल बी सो एट ऑल टाइम्स। देखो भैया, डार्क बंगलो जितनी भी पुरानी, बहुत पुरानी जो मूवीज़ हैं उसमें डार्क बंगलो हमेशा भूतिया ही दिखाया गया है। तो एक तो वैसे ही दिमाग में बैठा रहता है डार्क बंगलो क्या है, भूतिया है। ऊपर से इसको यहाँ पे रहना था, तो वैसे ही इसकी बैंड बजी हुई थी कि हे भगवान, डार्क बंगलो में कैसे रहूँगा। व्हेन वॉज दिस बंगलो बिल्ट? आई आस्क्ड। तो ये पूरी इंक्वायरी कर रहा है, वैसे ये कब बना था बंगलो? सुखन began to unroll my bedding and said, this used to be a साहिब्स बंगलो सर। ये एक ब्रिटिश ऑफिसर का बंगलो हुआ करता था सर। अ साहिब? यस सर, एन इंडिगो प्लांटर। यस सर, इंडिगो प्लांटर का, हु वॉज द ओनर ऑफ एरिया, वो उनका बंगलो हुआ करता था, ब्रिटिश ऑफिसर थे। देर यूज टू बी एन इंडिगो फैक्ट्री क्लोज बाय, नाउ ओनली द चिमनी स्टैंडिंग। सर बाकी तो सब खत्म हो गया है, सिर्फ चिमनी बची है। ये पूरा इंडिगो प्लांटेशन का ही पार्ट हुआ करता था, पास में वहाँ पे इंडिगो की फैक्ट्री थी। आई न्यू इंडिगो वॉज कल्टिवेटेड इन दीज पार्ट्स एट वन टाइम। आई हैड सीन ruins ऑफ इंडिगो फैक्ट्रीज इन मोंगर टू इन माई चाइल्डहुड। हाँ मुझे पता तो था, मोंगर में भी मैंने इंडिगो फैक्ट्रीज के कुछ शेष, कुछ ruins देखे थे। तो ये बात आई वॉज क्वाइट अवेयर कि यहाँ पे इंडिगो की कल्टिवेशन तो होती थी। इट वॉज 10:30 when I went to bed after dining on सुखन्स कोर्स चपाती एंड उड़द की दाल। तो रात का 10:30 हो गया था जब मैंने उसकी रफ चपाती और उड़द की दाल खाई। I had sent a telegram to Pramod from Calcutta saying that I would arrive this afternoon. So पहले ज़माने में मोबाइल या व्हाट्सएप या इस तरह का तो कुछ होता नहीं था, तो टेलीग्राम्स होते थे। टेलीग्राम्स वो दी लेटर्स जो कि भेजे जाते थे अर्जेंट कंडीशंस में। तो ये भेज देता है टेलीग्राम कि हम आज मतलब द फॉलोइंग आफ्टरनून में पहुंचूंगा। ही वुड नेचुरली वंडर व्हाट हैड हैपेंड। वो ज़रूर, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत लिमिटेड वर्ड्स लिखते हैं, तो सोचेगा तो ज़रूर क्या हो गया भाई। बट इट वॉज यूजलेस टू थिंक ऑफ दैट नाउ। क्या फ़ायदा, उसके बारे में सोचना बेकार है। ऑल आई कुड डू नाउ वॉज कॉन्ग्रेचुलेट माई सेल्फ ऑन हैविंग फाउंड अ शेल्टर। इस समय तो मैं बस यही अपने आप को शुक्रगुजार कहूँगा कि एटलीस्ट मैंने एक शेल्टर ढूंढ लिया इस भयानक रात में, एंड दैट टू विदाउट मच ट्रबल, वो भी इतनी ईजिली, बिना परेशान हुए। इन फ्यूचर आई वुड डू एज भोला बाबू हैड एडवाइज्ड। फ्यूचर में तो मैं हमेशा एक ड्राइवर को लेके ही ट्रैवल करूँगा, कभी भी अकेले नहीं ट्रैवल करूँगा। आई हैड लर्न अ लेसन एंड द लेसन्स लर्न द हार्ड वे आर नॉट फॉरगॉटन ईजली। देखो कहते नहीं है कि जब खुद करके, खुद एक्सपीरियंस करके कोई आप जब चीज़ सीखते हैं तो आप आसानी से भूलते नहीं हैं।
तो ये कहता है जो हार्ड वे में लेसन्स हम लर्न करते हैं ना वो इतने दिमाग से ईजिली हटते नहीं है. आई पुट द लालटेन इन द एडजॉइनिंग बाथरूम. लालटेन मैंने बगल वाले बाथरूम में रख दिया. The little light that seeped through the door, which I had kept slightly ajar. Ajar means open. बाथरूम का दरवाज़ा हल्का सा खुला रखा था ताकि उसमें से हल्की हल्की लाइट आती रहे. Was enough. काफ़ी थी लाइट. Usually I find it difficult to sleep with the light on, and yet I did not extinguish the light even though what I badly needed was sleep. So वो क्या बता रहा है कि देखो मेरे साथ जनरली मैं जब लाइट ऑन रहती है तो मैं सो नहीं पाता हूँ. इस समय मुझे नींद की बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, बाथरूम में ये लालटेन रख दिया और थोड़ा सा दरवाज़ा खोल दिया, हल्की हल्की लाइट आती रहे. अगेन न्यू प्लेस में डर भी लगता है, वो भी डार्क बंगलो जैसा घर में, तो उसको डर तो लग ही रहा था. तो वो जस्ट इन ऑर्डर टू रिकंसोल हिमसेल्फ, अपने आप को रीअश्योर करने के लिए वो हल्का सा दरवाज़ा ओपन करके सो जाता है. I was worried about my car, which I had left standing on the road, but it was certainly safer to do so in a village than in the city. देखो विलेज में तो इतने लोगों को कार वार चलाना आता नहीं है, तो ठीक है वो वहाँ पे खड़ी है, मेन रोड पे खड़ी है, कोई बात नहीं. सिटी से ज़्यादा सेफ तो वो विलेज में है. The sound of drizzle had stopped. अब बारिश की जो साउंड थी वो स्टॉप हो चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की आवाज़ रुक चुकी थी. The air was now filled with croaking of frogs and the shrill chirping of crickets. अब क्रॉक आफ्टर जो रेनफॉल की आवाज़ें होती हैं, क्रॉक की क्रोक करने की, क्रिकेट झिंगुर की आवाज़ करने की, वो सारी आवाज़ें आ रही थी. From my bed in that ancient bungalow in this remote village, the city seemed to belong to another planet. कभी आप लोग अभी गांव जाओ तो शहर और गांव की लाइफ इतनी डिफरेंट होती है, आपको लगेगा कि हे भगवान हम लोग कहाँ आ गए हैं. तो इसको भी ना बिल्कुल डिफरेंट फील होता है. इतनी बिजी हेक्टिक लाइफ और यहाँ पे इतनी शांति, इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन, ऐसा लग रहा था वो एक अनदर प्लैनेट पे पहुँच गया है. हाँ, इंडिगो. I thought of the play by Danabandhu Mitra Nildorpan, The Mirror of Indigo. As a college student, I had watched a performance of it in a theatre at Cornwallis Street. So दिमाग में इसके अब इंडिगो चलने लगा, यहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन होता था एंड ऑल दैट. ये मैंने एक बार प्ले भी देखा था. ये प्ले किसका प्ले था? दाना बंधु मित्रा. एंड कॉलेज स्टूडेंट में मैंने देखा था, उस थिएटर में, कॉर्नवालिस स्ट्रीट पे जो थिएटर है वहाँ पे देखा था. I did not know how long I had slept when a sound suddenly awakened me. मतलब ये सोचते सोचते सो जाता है. He was thinking about the play, about Indigo, and suddenly वो सो जाता है. एकदम से एक साउंड से वो awaken होता है, जग जाता है. Something was scratching at the door. कुछ scratching की आवाज़ आती है. The door was bolted. दरवाज़ा तो बंद था. Must be a dog or a jackal, I thought, and in a minute or so the noise stopped. कोई कुत्ता वुत्ता होगा, कोई जैकॉल होगा जो ऐसा है, विच इज़ वेरी कॉमन विलेजेस एंड ऑल में. लेकिन वो आवाज़ जो है वो रुक जाती है. आई शट माई आईज इन एन एफर्ट टू स्लीप. मैंने आंखें बंद कर ली ताकि अब मुझे सोना है, नहीं मैं सोने जा रहा हूँ. बट द बार्किंग ऑफ अ डॉग पुट एन एंड टू माई एफर्ट्स. लेकिन वो कुत्ता मार भौं 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 लगाया हुआ था और मेरे जो एफर्ट्स थे सोने के वो पूरा स्टॉप कर देता है. This was not the bark of a stray village dog, but the unmistakable bay of a hound. So bay of a hound actually refers to prolonged barking. लगातार जो bark करते हैं, hounds hunting dogs को बोलते हैं. So generally क्या होता है, when they are on search of a quarry या hunt के लिए जब वो निकलते हैं तो इस तरह की आवाज़ करते हैं. So इसको एक वैसी आवाज़ सुनाई देती है. आई वॉज फेमिलियर विथ इट. मुझे इस तरह की आवाज़ से मैं काफ़ी फेमिलियर था. इस तरह की आवाज़ मुझे पता थी कि ये किसी नॉर्मल डॉग की नहीं है, तो हाउंड की आवाज़ है. 2 houses away from us in Mongar lived Mr. Martin. He had a hound which bayed like this. 2 घर छोड़ के मुंगार में हमारे यहाँ मिस्टर मार्टिन रहते थे और उनके पास भी एक ऐसे हंटिंग डॉग था. वो भी इस तरह से आवाज़ अक्सर करता रहता था. Who on earth kept a pet hound here? इतने गाँव में कौन ये हाउंड एंड ऑल रखता है? ये सब तो गाँव के वाले डॉग्स नहीं हैं. I thought of opening the door to find out as the sound seemed quite nearer. Quite near. तो नियर साउंड है, मैंने सोचा दरवाज़ा खोल के देखूँ ये यहाँ पे कैसे कुत्ता है. बट देन आई थॉट वाई बॉदर. फिर मैंने कहा अरे क्या मुझे क्या करना होगा किसी का. इट वॉज बेटर टू गेट सम मोर स्लीप. What time was it now? अरे यार इससे अच्छा है मैं सो जाता हूँ, चलो सो जाता हूँ. और फिर अब देखता है टाइम क्या है. A faint moonlight came in through the window. हल्की हल्की moonlight आ रही थी. I raised my left hand to glance at my wristwatch and gave a start.
माई रिस्ट वॉच वॉज गॉन। मैंने अपना हाथ उठा के घड़ी देखने के लिए हाथ उठाया तो मैंने कहा अरे मेरे हाथ में तो रिस्ट वॉच ही नहीं है, गायब हो चुकी है मेरी घड़ी। एंड येट बिकॉज इट वॉज एन ऑटोमेटिक वॉच आई ऑलवेज वॉर इट टू बेड। और वो एक ऑटोमेटिक वॉच थी और मैं हमेशा वो पहना रहता था। वेयर डिड इट डिसअपियर? हे भगवान, कहाँ चली गई मेरी घड़ी? एंड हाउ? कहाँ चली गई की बात अलग है, कैसे चली गई ये इंपॉर्टेंट था। वर देयर थीव्स अराउंड? के यहाँ पे आसपास चोर हैं? वॉट वुड हैपन टू माई कार देन? अरे जब एक छोटी सी घड़ी वो भी मेरे हाथ से निकाल ली तो मतलब मेरी कार को तो बहुत ज़्यादा डेंजर हो सकता है। आई फेल्ट बिसाइड माई पिलो फॉर माई टॉर्च एंड फाउंड इट गॉन टू। मैंने टॉर्च बिस्तर के नीचे रखा था, वो उस पर हाथ मारा, वो भी नहीं थी वहाँ पे। I jumped out of my bed, knelt on the floor and looked underneath it. My suitcase too had disappeared. ओफो, सब कुछ गायब हो गया। मैं बेड से उतरा, ज़मीन पे पैर के भर बैठा, नील किया, नीचे देखा, सूटकेस कहाँ है, सूटकेस कहाँ है, हाय राम मेरा तो सूटकेस भी गायब हो गया। माई हेड स्टार्टेड स्पिनिंग, सरी चक्कर आ गया, हे भगवान ये क्या हो गया है। समथिंग हैड टू बी डन अबाउट इट। आई कॉल्ड आउट चौकीदार। अरे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। मैं चिल्ला चिल्ला के बुलाने लगा, अरे चौकीदार कहाँ हूँ? देयर वॉज नो आंसर, कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। आई वेंट टू द डोर एंड फाउंड दैट इट वॉज स्टिल बोल्टेड। मैं दरवाजे पे गया, मैंने देखा तो अभी भी मैंने कुंडी चढ़ी हुई है। द विंडो हैड बार्स, विंडो में भी ग्रिल्स लगी हुई थी। हाउ डिड द थीफ एंटर? अभी चोर आया तो आया कैसे? दरवाज़ा अंदर से लॉक है, विंडो में ग्रिल लगी हुई है, चोर एंट्री कहाँ से लिया? एज आई वॉज अबाउट टू अनफैसन द बोल्ट, जब मैं दरवाज़ा खोलने के लिए कुंडी खोली, आई ग्लांस्ड एट माई हैंड एंड एक्सपीरियंस्ड अ नॉट फीलिंग। हाथ देखा तो मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। ओफो, हैड वाइट वॉश फ्रॉम द वॉल गॉट ऑन माई हैंड्स। हाथ इतने सफ़ेद कैसे हो गए हैं? ये दीवार का चूना वूना हाथ में गिर गया है क्या? और वॉज इट वाइट पाउडर? पाउडर वाउडर कहीं से सफ़ेद पाउडर आ गया मेरे हाथों में? वाई डिड इट लुक सो पील? इतने पीले पीले गोरे गोरे क्यों लग रहे हैं? आई हैड गॉन टू बेड वेयरिंग अ वेस्ट। वेस्ट मतलब बनियाइन। मैं तो जब सोने गया था तो मैं तो बनियाइन पहना हुआ था। वाई देन वॉज आई नाउ वेयरिंग अ लॉन्ग स्लीव्ड सिल्क शर्ट? वो हैलुसिनेट कर रहा था या एक सपना था, उसको समझ में नहीं आता है। दिस इज समवेयर बिटवीन हैलुसिनेशन एंड अ नाइटमेयर। वो क्या कह रहा है, मैं पहन के तो बनियाइन गया था, अभी मैं ये लॉन्ग सिल्क की शर्ट क्यों पहना हुआ हूँ? आई फेल्ट अ थ्रॉबिंग इन माई हेड। थ्रॉबिंग मतलब ऐसे ऐसे सर में ऐसा लग रहा है कोई धम धम कर रहा है, इतनी कस कस के कोई मार रहा है। आई ओपन द डोर एंड वेंट आउट इनटू द वेरांडा। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं वेरांडा में गया। चौकीदार ये बुलाता है, सो बिल्कुल इंग्लिश एक्सेंट में चौकीदार इस तरह से कुछ आवाज़ आती है। The word that came out was spoken with an unmistakable accent of an Englishman. And there was the चौकीदार and where was his little cottage? चौकीदार तो था बट उसकी कॉटेज वॉटेज कहाँ चली गई? There was now a wide open field in front of the bungalow. अभी तो सामने जब वो जाता है तो देखता है एक बड़ी सी फील्ड है बंगलो के बाहर। In the distance was a building with high chimney. Distance पे एक building है जिसपे खूब ऊंची सी चिमनी है, probably an indigo factory. The surroundings were unusually quiet. और आसपास की जो surroundings हैं वो unusual way में बहुत शांत थी। They had changed. सब कुछ तो चेंज हो गया था। सराउंडिंग्स वॉज नो लॉन्गर द सेम। जैसे जब वो एंट्री लिया था जिस तरह की तब सराउंडिंग थी और इस समय की सराउंडिंग बिल्कुल चेंज्ड थी। एंड सो हैड आई। इनफैक्ट मैं भी चेंज हो गया हूँ। जब मैं यहाँ पे आया था डाक बंगलो में, मैंने जो चीज़ें पहनी थी वो सब कुछ था ही नहीं। इस समय तो मैं बिल्कुल चेंज्ड लग रहा था। आई केम बैक इन टू द बेडरूम विद अ स्वेट। पसीने पसीने घबरा के मैं बिल्कुल बेडरूम में आता हूँ। माई आईज हैड गॉट यूज टू द डार्कनेस। आई कुड नाउ क्लियरली मेक आउट द डिटेल्स। अब मैं अंधेरे में भी मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा था, मुझे डिटेल्स दिखाई दे रही थी। द बेड वॉज देयर। जब वो कमरे में आता है तो देखता है बेड तो है, बट इट वॉज कवर्ड विद अ मस्किटो नेट। लेकिन उसमें तो मच्छरदानी लगी है। जब वो सोने आया था तब तो ये सब कुछ नहीं था। आई हैडंट बीन यूजिंग वन। इनफैक्ट मेरे पास तो है ही नहीं मस्किटो नेट। द पिलो टू वॉज अनलाइक द वन आई हैड। मेरा पिलो तो बड़ा सिंपल से था, ये तो बड़ा स्टाइलो पिलो है।
आई हैड ब्रॉट विथ मी, मैं तो बिल्कुल सिंपल सा पिलो लेके आया था. द वन हैड बॉर्डर विथ फ्रिल्स, माइन डिडंट. जनरली जो आपने देखा होगा जो अच्छी पिलोज होते हैं उनमें सब बॉर्डर्स एंड फ्रिल्स होते हैं. हम लोग नॉर्मल सिंपल सा पिलो यूज़ कर लेते हैं, उनमें फ्रिल्स एंड ऑल तो होते नहीं हैं. द टेबल एंड द चेयर स्टूड वेयर दे डिड, बट दे हैड लॉस्ट देयर एजड लुक. टेबल और चेयर तो वैसे ही यहाँ पे अभी भी हैं जैसे जब वो एंट्री लिया था तब थे, लेकिन टेबल और चेयर जब वो एंट्री लिया था तो बड़े पुराने पुराने से थे. इस समय तो पुराने नहीं लग रहे हैं, इस समय तो सब नए नए लग रहे हैं. द वार्निश्ड वुड, द पॉलिश्ड वुड शोन इवन इन द सॉफ्ट लाइट. हल्की हल्की जो लाइट थी उसमें बिल्कुल चमक रहे थे, सारी लकड़ी लकड़ी सब चमक रही थी. On the table stood not a lantern but a kerosene lamp with an ornate shade. एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा शेड था और केरोसिन लैम्प लगा रखा हुआ था. There were other objects in the room which gradually came into view. और भी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई थी जो धीरे धीरे ये देखता है. A pair of steel trunks in a corner. Pair of steel trunks, बक्से जो होते हैं स्टील के बक्से, वहाँ पे एक पैर रखा हुआ था. A folding bracket on the wall from which hung a coat, an unfamiliar type of headgear and a hunting crop. So वहाँ पे एक ऐसे ब्रैकेट्स टाइप था, उस पे कोट टंगा हुआ था, हेडगेयर कुछ लगा हुआ था जो कि बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर था, समझ में नहीं आ रहा था, और अ हंटिंग क्रॉप था, कुछ हंटिंग से रिलेटेड था. Below the bracket, standing against the wall, was a pair of galoshes, boots. वहाँ पे वॉल के पास में बूट्स रखे हुए थे. I turned away from the object and took another look at myself. चीज़ों को छोड़ के मैं फिर से अपने आप को देखने लगा. Till now I had only noticed the silk shirt and now I saw the narrow trousers and the socks. अभी तक तो सिर्फ शर्ट पे मेरी निगाह गई थी, अब तो पैंट वैंट में देखने लगा, वो भी बिल्कुल नैरो ट्राउजर्स और सॉक्स में पहना हुआ था. I did not have shoes on but saw a pair of black boots on the floor by the bed. मैं उस समय जूता तो नहीं पहना था लेकिन बिस्तर के बगल में ही ब्लैक बूट्स रखे हुए थे. I passed my right hand over my face and realized that not only my complexion but my features too have changed. हाथ हाथ फील करता हूँ, मेरा सिर्फ कलर ही नहीं चेंज हुआ है बल्कि मेरे फीचर्स तक चेंज हो गए हैं. I did not possess such a sharp nose. इतनी प्यारी सी sharp nose मेरी नहीं है. Nor such thin lips or narrow chin. इतनी thin lips, इतने पतले chin मेरे तो थे ही नहीं. I felt the hair on my head and found that it was wavy and that there were sideburns. कलम, जो कलम होती है, ये चीज़ जो होती है वो, which reached below my ears. मेरे कलम भी है, मेरे बाल बहुत वेवी हैं, और मतलब इस तरह का मेरा कुछ था ही नहीं अपीयरेंस यार. मेरे बाल भी इतने वेवी नहीं थे, मेरी इतनी लंबी लंबी कलमें भी नहीं थी. In spite of my surprise and terror, I suddenly felt a great urge to find out what I looked like. देखो, मैं बहुत सरप्राइज था, मैं बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर एक अर्ज थी कि यार मैं दिख कैसे रहा हूँ, एक बार चल के मुझे देखना है. बट वेयर टू फाइंड अ मिरर, लेकिन भाई मिरर कहाँ ढूंढूं. I strode towards the bathroom, opened the door with a sharp push and went in. बाथरूम की तरफ मैंने बड़े मुश्किल से मूव किया, दरवाज़ा खोला और कस के खोल के मैं अंदर चला गया. There had been nothing there but a bucket. वहाँ पे बाथरूम में कुछ भी नहीं था सिवाय एक बकेट के. Now I saw a metal bathtub and a mug kept on a stool beside it. अब मैंने एक मेटल का बाथ टब देखा, उसमें एक मग था जो कि स्टूल के बगल में रखा हुआ था. The thing I was looking for was right in front of me. An oval mirror fixed to a dressing table. मेरे को जो मैं ढूंढ रहा था वो फाइनली मिल जाता है. एक ओवल शेप्ड का मिरर था जो कि एक ड्रेसिंग टेबल से, जैसे ड्रेसिंग टेबल है नीचे और ऊपर मिरर है, उस तरह का एक मुझे दिखाई दे जाता है मिरर. I looked into it. मैंने फाइनली देख लिया. But the person reflected in it was not me. अबे मेरी परछाई तो मेरी थी ही नहीं, उसमें जो रिफ्लेक्शन था उसमें तो मैं दिख ही नहीं रहा था. By some devilish trick, I had turned into a 19th century English man with a sallow complexion, yellow, unpleasant complexion. हे भगवान, मैं तो 19th century का इंग्लिश मैन बन गया हूँ, ब्रिटिशर बन गया हूँ. मेरा complexion बिल्कुल पील हो चुका है.
blonde hair, light brown hair, and light eyes from which shone a strange mixture of hardness and suffering. So वो क्या कह रहा है, मेरी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक इंग्लिशमैन की तरह हो गई है. आंखों में मिक्सचर ऑफ हार्डनेस, सफरिंग्स शो हो रही हैं. मतलब बहुत क्रूअल टाइप का कुछ पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा सफरिंग्स देखी हैं, हार्ड हार्टेड पर्सन है. हाउ वुड द इंग्लिशमैन बी? नॉट मोर देन 30. या कैसा रहा होगा, 30 साल के आसपास का रहा होगा. बट इट लुक्ड एज इफ either illness or hard work or both had aged him prematurely. ये बंदा ऑलमोस्ट 30 years का रहा होगा, ये जो इंग्लिशमैन था जिसका वो अपीयरेंस लिया हुआ था. लेकिन या तो इलनेस की वजह से या बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की वजह से, दोनों में से एक किसी वजह से ऐसा लग रहा था वो एज प्री मेच्योरली कर गया था. वो मतलब 30 साल से ज़्यादा बुढ़ा लग रहा था, ऑल्दो वो होगा लगभग 30 साल का ही. सो हम ये कह सकते हैं दैट अनिरुद्ध वॉज नॉट रियली इन द बॉडी ऑफ द टैक्स कलेक्टर. ये जो इंग्लिशमैन है उसकी बॉडी में नहीं था, तो ही वॉज नॉट इन द पोजेशन ऑफ अ घोस्ट. वो कॉन्शियस है, उसका माइंड जो है वो कॉन्शियस है, सिर्फ बॉडी जो है वो चेंज हो गई है. वो माइंड जो है वो बिल्कुल वे में, यार हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है, चश्मा देखना है, मिरर देखना है, तो उसका दिमाग बिल्कुल चल रहा है एज अनिरुद्ध, लेकिन बॉडी उसकी चेंज हो गई है. I went closer and had a good look at my face. कॉन्शियस है वो सब कुछ रियलाइज कर रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी कैसे चेंज हो रही है. तो फिर से ज़्यादा अपना शक्ल देखता है. एज आई लुक्ड डीप साई as I looked, a deep sigh rose from the depth of my heart. एक डेप्थ ऑफ माई हार्ट से एक साई आती है. साई मीन्स हैवी ब्रेथ. द वॉइस वॉज नॉट माइन. अरे आवाज़ भी मेरी नहीं है. The sigh too expressed not my feelings, बस those of Englishmen. अरे जो मैं sigh ले रहा हूँ, मैं जो breathe कर रहा हूँ, मैं heavy breaths ले रहा हूँ, वो भी मेरे expressions नहीं है, वो तो Englishman के expressions हैं. What followed made it clear that all my limbs were acting of their own volition. देखो ये बात तो समझ में आ गई थी कि मेरा दिमाग तो मेरा था, लेकिन जो मेरे limbs थे, मेरी body थी, वो मेरी नहीं थी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं हो रही थी. And yet it was surprising that I, Anirudh Bose, was perfectly aware of the change of the identity. Identity change हुई है, माइंड उसका चल रहा है, बॉडी उसकी चेंज हो रही है, लेकिन दिमाग एज माइंड वो अनिरुद्ध है और बॉडी के वाइज वो कैसा हो गया, एक इंग्लिशमैन हो गया है. But I did not know if the change was permanent or if there was any way to regain my lost self. अब मैं घबरा जाता हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आता है ये चेंज जो है ये परमानेंट है या किसी भी तरह से मैं अपने लॉस्ट सेल्फ को वापस ला सकता हूँ. क्या मैं वापस से कभी अनिरुद्ध बन पाऊँगा? मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा. मैं इतना घबरा गया हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा. What followed made it clear that all my limbs were acting of their own volition. ये बात तो क्लियर थी कि मेरे limbs जो हैं वो मेरे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, मेरे हिसाब से मेरे limbs नहीं कर रहे हैं. पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा. And yet it was surprising that I, Anirudh Bose, was perfectly aware of the change in identity. मेरा माइंड बिल्कुल वर्क कर रहा है एज अनिरुद्ध बोस. मुझे पता चल रहा है कि मेरी बॉडी में कोई ना कोई चेंजेस हो रहे हैं, बट ये मेरे कंट्रोल के बियॉन्ड थे. क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वो मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा था. But I did not know if the change was permanent or if there was any way to regain my lost self. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये जो चेंज हुआ है, मैं इंग्लिश मैन में जो चेंज हुआ हूँ, ये परमानेंट है या कोई भी तरीका है कि मैं वापस से एज अनिरुद्ध बन सकूँ. I came back to the bedroom. Finally मैं वापस बेडरूम में आ जाता हूँ. Now I glanced at the table. Below the lamp was a notebook bound in leather. मैंने टेबल पे देखा तो लैम्प के नीचे एक नोटबुक थी which was bound in leather. लेदर से बंधी हुई थी. It was open at a blank page. एक blank पेज पे वो ओपन था. Beside it was an inkwell with a quill pen dipped in it. quill pen feather वाला पेन और एक इंक पॉट था जो कि पहले यूज़ किया जाता था in order to write something in olden days. I walked over to the table. मैं टेबल के पास गया.
Some unseen forces made me sit in the chair and picked up the pen with my right hand. See, he was not doing anything. पता नहीं कहाँ से कोई एक फोर्स आता है जो इसको उस चेयर पे ज़बरदस्ती बिठा देता है और अपने पेन उठाता है, ये वो जो क्विल वाला पेन है उसको उठा लेता है. The hand now moved towards the left hand page of the notebook and the silent room was filled with the noise of quill scratching the blank page. So quill से kind of the pen वो जो डिप कर करके लिखते हैं उससे वो पेपर पे लिख रहा है और उसकी जो नॉइज है स्क्रैचिंग की वो पूरी फिल कर रही है. एंड दिस इज़ वॉट आई रोट, और ये वो लिखता है. अगेन ही इज़ नॉट राइटिंग एज अनिरुद्ध, ही इज़ एक्चुअली राइटिंग समथिंग जो उसको कोई फोर्स करके लिखा रहा है. वो अपने से नहीं लिख रहा है, माइंड से वो अनिरुद्ध है, लेकिन फिजिकली पता नहीं कैसे वो एक इंग्लिशमैन हो गया है और फिजिकल फोर्स लगा के कोई उससे ये सारी चीज़ें लिखवा रहा है. क्या लिख रहे हैं? 27 April 1868. Those fiendish mosquitoes, devilish mosquitoes are singing in my ears again. हे भगवान, ये devilish mosquitoes फिर से मेरे कानों में भिनभिना रहे हैं, कुछ गाना गा रहे हैं. So that's how the son of a mighty empire has to meet his end. बताओ यार, that's how the son of a mighty empire, that means ये इंग्लिशमैन के जो फादर होंगे वो बहुत बड़े एम्पायर उनका होगा. और ये इंग्लिशमैन क्या कह रहा है कि बताओ, मैं इतने बड़े एम्पायर के ओनर का बेटा, अब मेरा एंड इस तरह से होने जा रहा है. एट द हैंड्स ऑफ अ टाइनी इंसेक्ट, इस टाइनी इंसेक्ट, इस मस्किटो से मेरी जान जाएगी. वॉट स्ट्रेंज विल ऑफ गॉड इज दिस. हे भगवान, ये तुमने क्या विल बनाई है, ये तुम्हारी क्या मर्जी है. एरिक हैज़ मेड हिज एस्केप. पर्सी एंड टोनी टू left earlier. Perhaps I was greedier than them. So he actually accepts the fact कि ये जो पर्सन है, ये जो इंग्लिशमैन है, ये ग्रीडियर था. इसके जो कंपेनियंस थे, पर्सी, टोनी, एरिक, वो सब ऑलरेडी ये जगह छोड़ के जा चुके हैं. ये यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड रह जाता है. So, in spite of repeated attacks of malaria, I could not resist the lure of indigo. इतने ज़्यादा यहाँ पे मलेरिया का अटैक हो रहा है, लेकिन फिर भी मेरी एक लालच थी टुवर्ड्स इंडिगो, मैं उसको छोड़ के जा ही नहीं पाया. मैंने मनी को अपनी जान से ऊपर रख दिया, तो मैंने मनी को प्रेफरेंस दिया रादर दैन अपनी जान को. मुझे भी उनकी तरह डर के यहाँ से चले जाना चाहिए था, बट देखो आज मेरी क्या कंडीशन हो गई है. एक छोटे से मच्छर मेरी जान ले रहे हैं. So, in spite of repeated attacks of malaria, I could not resist the lure of indigo. वो जो एक like indigo was attracting me and I could not resist in spite of the fact that malaria बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैला हुआ है. No, not only that, one mustn't lie in one's diary. नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है. चलो डायरी में तो मैं किसी से लाई करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी दिल की बात खुल के लिख सकता हूँ. My countrymen know me only too well. मेरे लोग तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं. I did not lead a blameless life at home either. वहाँ पे इंग्लैंड में भी मैं कोई एक ब्लेमलेस लाइफ नहीं लीड किया हूँ. मतलब मेरे ऊपर दाग नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब मैं एक करप्ट पर्सन था वहाँ पर भी. एंड दे श्योरली हैव नॉट फॉरगॉटन दैट. ऑब्वियसली किसी के भी बैड डीड्स इंसान भूलता नहीं है, तो डेफिनेटली मेरे बैड डीड्स वो लोग भूले नहीं होंगे. सो आई डू नॉट डेयर गो बैक होम. भाई मैंने इतना ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं वहाँ पे, लोग तो मेरे डीड्स भूले नहीं होंगे, तो मेरा वहाँ पे जाने से कोई मतलब नहीं है. मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पे वापस जाऊँ. आई नो आई विल हैव टू स्टे हियर एंड ले डाउन माई लाइफ ऑन दिस एलियन सॉइल. अब वो बहुत अकेला फील कर रहा है. क्या कह रहा है यार, मेरे बैड, जब इंसान मरने वाला होता है ना तो उसको अपने सारे कर्म याद आते हैं. तो ये जो इंग्लिश मैंने कह रहा है कि जब मैं अपनी कंट्री में था तो मैंने वहाँ पे भी बहुत सारे बैड डीड्स किए हैं. मेरे लोग वो डीड्स को तो याद रखेंगे ही. अब मैं क्या करूँ, मुझे यहीं पे जीना पड़ेगा, यहीं पे मरना पड़ेगा. और मुझे अपनी एलियन सॉइल, ये सॉइल तो उसकी नहीं है ना, ये उसके लिए तो फॉरेन है, तो एलियन सॉइल पे मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी. सो हम ये कह सकते हैं ये जो टैक्स कलेक्टर है, इसका जो सोल है वो अनरेस्टेड है. इसका जो पास्ट है वो अनसेटल्ड है और वो बिल्कुल भी एट पीस नहीं है. अपने लास्ट मोमेंट पे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. वो अपने लास्ट मोमेंट पे पीसफुल डेथ उसको नहीं नसीब हुई है, बहुत परेशान है. My place will be beside the grave of my wife Mary and my dear little son Toby.
सो मतलब ये है कि बेचारे के वाइफ और बेटे की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। सो वही वो कह रहा है कि मेरी ग्रेव भी मेरी वाइफ और मेरे बेटे के बगल में होगी। आई हैव ट्रीटेड द नेटिव्स हियर, नेटिव्स मतलब यहाँ के जो लोग हैं, here so badly that there is no one to shed a tear at my passing away. So he knows that he has been so unjust, he has been so cruel with the natives. Natives means the locals of that place. इंडिया में वो इतना ज़्यादा क्रुएलिटी शो कर चुका है कि लोग उसके मरने पे कोई भी आंसू नहीं बहाएगा, सब यही सोचेंगे अच्छा हुआ मर गया। Perhaps Mirjan would miss me, my faithful trusted bearer Mirjan. Bearer क्या होता है? या तो टॉर्च bearers या जो अम्ब्रेला bearer होते हैं उनको बोलते हैं। सो प्रॉब्ली कोई बंदा होगा, शायद वो बस मुझे मिस करें। एंड रेक्स, शायद वो करे। माई रियल वारी इज़ अबाउट रेक्स, मुझे सिर्फ रेक्स के बारे में टेंशन है। अलास फेथफुल रेक्स, हे भगवान रेक्स तुम ही सबसे फेथफुल थे। When I die these people will not spare you, हे भगवान, क्योंकि भाई हंटिंग डॉग है, तो हंटिंग डॉग जो है वो जाहिर सी बात है वो सिर्फ और सिर्फ अपने ओनर के लिए फेथफुल रहता है, बाकी सबको वो भी हर्ट करता है। तो कहते हैं हे भगवान अगर मैं मर गया ना तो ये लोग तो तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। दे विल ईदर स्टोन यू और क्लब यू टू डेथ, या तो मार डालेंगे स्टोन मार मार के, गला दबा, मतलब कैसे भी करके दे विल एक्चुअली किल यू। इफ़ ओनली आई कुड डू समथिंग अबाउट यू, हे भगवान काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता। आई कुड राइट नो मोर, दी हैंड्स वर शेकिंग नॉट माइन द डायरेस्ट। सो वो कह रहा है मैं लिख ही नहीं पा रहा था, फिर मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे हाथ नहीं काँप रहे थे, अनिरुद्ध कह रहा है, द पर्सन जो मुझसे लिखा रहा था उसके हाथ काँपने लगे। आई पुट डाउन द पेन, मैंने पेन को रख दिया। Then my right hand dropped and moved to the right and made the handle for the drawer. फिर मेरा राइट हैंड अपने आप मूव कर रहा है और मैं जा रहा हूँ और मैंने ड्रॉर को ओपन किया। I opened it, मैंने ओपन किया। Inside there was a pin cushion, a brass paperweight and pipe and some papers. So उस ड्रॉर में कुछ पिन कुशंस थे, ब्रास का पेपर वेट रखा हुआ था, पाइप थे, कुछ पाइप वो जो स्मोक वाले पाइप होते हैं, और कुछ पेपर्स थे। द ड्रॉवर ओपनड अ लिटिल मोर, अ मेटल ऑब्जेक्ट ग्लिंटेड इन द हाफ लाइट। सो कुछ एक मेटल जैसा ऑब्जेक्ट शाइन कर रहा था आधी आधी लाइट में। इट वॉज अ पिस्टल, इट्स बट इनलेड विथ आइवरी, सो ऑर्नामेंटेड था, मतलब जैसे आप लोग ने देखा होगा जो पुराने पिस्टल्स एंड ऑल होते हैं उसका नीचे का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफाइड होता है, तो आइवरी या एक्सपेंसिव जो एलिफेंट टस्क होते हैं उनका बना होता है, तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। द हैंड पुल्ड आउट द पिस्टल, इट हैड स्टॉप्ड शेकिंग। हैंड्स जो है वो पिस्टल को उठा लेते हैं, शेक नहीं करते हैं, मतलब वो इतना ज़्यादा यूज टू था हैंड्स पिस्टल उठाने का, लोगों को मारने का, कि वो शेक नहीं कर रहा था इस समय। A group of jackals cried out. Group of jackals जो हैं वो आवाज़ कर रहे हैं, cry कर रहे हैं। It was as if in answer to the jackals' cry that the hound bayed again. As if ये जो hound था, dog जो था, वो उन jackals को answer कर रहा है और वो फिर से आवाज़ करता है। I left the chair and advanced towards the door. मैंने चेयर छोड़ी, अब मैं उठ के दरवाजे की तरफ जा रहा हूँ। Again not as Anuruddh but as the Englishman. I went out into the veranda, और मैं veranda की तरफ गया। The field in front was bathed in full moonlight. पूरी moonlight से पूरी field जो थी वो shine कर रही थी। About 10 yards from the veranda stood a large greyhound. 10 yards की distance पे एक बड़ा सा greyhound था। He wagged his tail as he saw me. So वो भी अपनी tail wag करता है as if जब कोई डॉग अपने ओनर को दिखता है तो वो बड़े खुश हो जाते हैं, तो ये भी करता है। रेक्स, इट वॉज द सेम डीप इंग्लिश वॉइस, तो इसका एक्सेंट नहीं था अनिरुद्ध का, वही डीप इंग्लिश वॉइस वाला एक्सेंट में था। द एको ऑफ द कॉल केम फ्लोटिंग बैक फ्रॉम फार अवे फैक्ट्री एंड बैम्बू ग्रूव। रेक्स रेक्स, ये अगेन थोड़ा सा हॉरर दिखा रहे हैं, भूतिया टाइप्स। रेक्स, ये बुलाता है रेक्स, उधर से आवाज़ रेक्स रेक्स रेक्स, सारी एको होती है, आवाज़ गूंज रही है। रेक्स केम अप टुवर्ड्स द वरांडा, रेक्स आते हैं वरांडा की तरफ। As he stepped from the grass onto the cement, my right hand rose to my waist, the pistol pointing towards the hound. So जब वो grass से आता है सीमेंट की तरफ, मेरा right hand raise होता है अब मेरे waist के ऊपर, और पिस्टल उस कुत्ते की तरफ पॉइंट आउट था। रेक्स stopped in his track, his eye on the pistol.
he gave a low growl. So वो एकदम से confused हो जाता है जब पिस्टल को देखता है, low sound करता है. My right four fingers pressed the trigger. और मेरे जो right के four fingers हैं मैंने trigger से उसको दबा दिया. As the gun throbbed with a blinding flash, smoke and the smell of gunpowder fill in the air. एकदम से बहुत ज़्यादा कस के फ्लैश होता है, स्मोक होता है, पूरी हर जगह वहाँ पे गन पाउडर एंड ऑल रहता है. Rex lifeless body, spattered body lay partly on the veranda and partly on the grass. Rex जो था वो lifeless हो जाता है. पूरी body it was all covered with blood. पूरे में bloody blood smeared था. And it was half lying on the veranda. आधा मतलब टूटा नहीं था, obvious सी बात है, फ्लैश है तो वो आधा वरांडा पे पड़ा हुआ था और आधा बॉडी उसकी ग्रास पे पड़ी हुई थी. The sound of the pistol had awakened the crows in the nearby tree, and a hubbub noise now rose from the direction of the factory. जो पिस्टल की आवाज़ थी उससे crows काव 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 करते सब उड़ जाते हैं. आस पास की जो फैक्ट्री है वहाँ से काफ़ी आवाज़ें आने लगती हैं. I came back into the bedroom, bolted the door, sat on the bed, and the shouting drew near. तो मैं आता हूँ, दरवाज़ा बंद करता हूँ, अब बेडरूम में बेड पे बैठ जाता हूँ, फिर शाउटिंग पास आती जाती है. I placed the still hot muzzle of the pistol by my right ear. और मैं फिर वो पिस्टल अपने right ear पे लगा लेता हूँ. That is all I remember. Probably he must have shooted himself. ये सब वो imagine कर रहा है as if वो एक Englishman है. I woke up at the sound of knocking. Probably this was a nightmare or he himself was doing all this thing. Not clear. I woke up at the sound of the knocking. फिर finally ये सब देखते हुए उसको खटखट खटखट आवाज़ आती है. I have brought your tea, sir. So this was Sukhan Ram. Sir, मैं चाय लाया हूँ. Daylight flooded in through the window. Out of sheer habit of my eye, straight to my left wrist. पता नहीं कैसे मेरी एक हैबिट है, मैंने लेफ्ट रिस्ट उठाया फिर अपनी घड़ी देखने लगी. 13 minutes past 6, 6:15 ऑलमोस्ट हो रहा था. I brought the watch closer to my eyes to read the date, April and the 28th. So मैं पास में लाया, डेट देखने लगा. It was 28th April. I now opened the door and let Sukhan Ram in. फिर मैंने दरवाज़ा खोला, सुखन राम को अंदर बुलाया. There is a car repair shop half an hour down the road, sir. He said, it will open at 7. Sir, यहाँ पे आधे का ऑलमोस्ट 40 मिनट्स बाद आप जाइएगा तो वहाँ पे एक शॉप है, 7 बजे वो ओपन हो जाती है. डाउन द रोड आप वहाँ पे अपनी कार रिपेयर करवा लीजिएगा. वेरी गुड, आई सेड एंड प्रोसीडेड टू ड्रिंक माई टी. ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू. और मैं अपना चाय पीने चला जाता हूँ. Would anyone believe me when they heard of my experience on the night of the 100th anniversary of the death of an English indigo planter in Bourbon? So this is the strange thing. So Anirudh actually says that it was a wild and a terrifying night. बहुत ही भयानक रात थी. And he in fact doubts that nobody will ever believe his strange story. ऐसा इंसिडेंट उसके साथ हुआ है. And ये स्ट्रेंज बात क्या है, दिस अनबिलीवेबल इंसिडेंट एक्चुअली टुक प्लेस on the 100th anniversary, in fact death anniversary of an English indigo planter in Bourbon. So this was the most strange thing कि उसी दिन जिस दिन 100th anniversary थी उस दिन उसके साथ ये इतना strange incident हुआ है. So ending is very unexpected. It is quite surprising. Why? Because when Anirudh awakens, जब वो जगता है, he finds that everything is absolutely normal. सब कुछ बिल्कुल normal है. And this is something very very shocking also for him कि इतना strange incident उस particular date को ही क्यों हुआ जिस दिन उस indigo planter की 100th anniversary थी. So many students were actually requesting me to make a video on this chapter. So I have completed my duty. Now it's your turn to show your love to me. Do share your comments. It's actually a privilege to read your comments, such lovely comments. It gives me a lot of motivation to make more such videos. And please don't forget to like, share or subscribe to this channel. I love you all. Keep loving me. Keep showing your love to me. Thank you so much. Bye-bye.